دم کی سلام کے ساتھ اللہ کا شکر ہو، اس کے نام کی تعریف ہو آج خوبصورت دن کے لیے اور موسم کے کھلنے کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج پنکھے بھی چلنا شروع ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ان دنوں میں پروٹون بلیورز کے حوالے سے بتا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کلیسیا اس ڈگر پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آمین۔ جیسا میں بتا چکا ہوں، ایک وہاں سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ کلیسیا میں سے اور دیگر لوگ بشارت کو کس طور پر پیش کرنا ہے، بشارت کو کس طور پر پیش کرنا ہے، ایونجلزم کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم ٹیوزڈے کو آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں محدود لوگوں کو دعوت ہے، لیکن تو بھی جو ایک دفعہ آئے گا اس کے لیے موقع ہوگا، اس کے بعد 3 ماہ کے بعد اس کے لیے موقع ہوگا۔ لہذا جس نے کرنا ہے وہ چرچ کے بعد نام لکھوائے، کیونکہ اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ آمین۔ میری بات سمجھائی ہے؟ ٹیوزڈے 7 بجے اس کی ٹائمنگ ہوگی اور اس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طور پر آپ خداوند کی خوشخبری کو دوسروں تک 1 to 1 لے کر جا سکتے ہیں، کس طور پر آپ شخصی طور پر اپنی ایمان کو دوسروں تک بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ آپ کے پاس یہ موقع ہے۔ آپ آفٹر میٹنگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میں بات کر رہا ہوں پروٹون بلیور کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ پروٹون گریک ورڈ ہے جس کا مطلب فرسٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ، اول۔ اور یہ پہلا کرنتھیوس 12واں باب اس کی 28ویں آیت میں آیا ہے کہ خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، and so on۔ اس کا مطلب ہے پہلے کا جو اپنا اول ہونے کا جو درجہ ہے وہ رسول کو حاصل ہے، یعنی ترتیب میں یہ سب سے پہلے ہے۔ میں نے بتایا کہ جب ہم پروٹون کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یوں بنتا ہے کہ وقت میں پہلے، جگہ میں پہلے، ترتیب میں پہلے اور اہمیت میں، یہ سب سے پہلے۔ اور جو سب سے پہلے ہیں ان کی جو ذمہ داری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، وہ برکت میں بھی اول ہوتے ہیں، آمین، وہ اختیار میں بھی اول ہوتے ہیں، وہ میراث میں بھی اول ہوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ پھر میں نے بتایا پروٹون جو ہے، جب ہم پہلے کی بات کرتے ہیں تو اسی سے ایک ورڈ بنے گا پائنیئر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس کام کا کیا ہے؟ پائنیئر ہے۔ پائنیئر کون ہے؟ پیتھ فائنڈر، یعنی پاتھ فائنڈر، جو ہے رستہ تلاش کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ پیش رو ہیں، یعنی آگے چلتے ہیں، وہ انوویٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہیں؟ وہ پائنیئر کیا کرتے ہیں؟ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، یعنی پہلا قدم اٹھانے والے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے؟ وہ شروعات کرنے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ لیڈ کرنے والے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ ادارہ بنتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ادارہ ہیں، وہ فاؤنڈر ہیں، جیسے کہتے ہیں بانی،
وہ اسٹیبلشر ہیں، بنانے والے، قائم کرنے والے ہیں، وہ جیسے بنیاد رکھنے والے، ان کو پائنیئر کہتے ہیں، اور یہی پروٹون ہے۔ آمین۔ جب وہ پاور میں اول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ہیں، پوٹینٹیٹ ہیں۔ اگر آپ اتھارٹی کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے اختیار کی بات کریں گے تو پھر تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہم رولر اور لیڈر ہیں۔ جب رینک کے اندر بات کریں گے، کسی شخص کی رینکنگ کی بات کی جائے گی تو کہیں گے یہ کیپٹن ہے، یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں رینک آ جاتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے ہوگا وہ کون ہوتا ہے؟ جنرل، اس کے بعد دوسرے رینک آئیں گے۔ آمین۔ تو پروٹون جو ہے سب سے پہلے اول ہے، اور جو ہے رسولوں کو یہ درجہ ملا ہے کہ وہ کیا ہوں؟ پروٹون ہوں۔ آمین۔ لہذا اسی طرح اس چیز سے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پروٹون ہیں، یہ اول ایماندار بنے، ہر کام میں کیا ہوں؟ اول نظر آئیں، یعنی اول درجہ رکھنے والے ایماندار۔ اور وہ کس میں اول نظر آئیں گے؟ بولیے، اہمیت میں اول نظر آئیں گے، وہ درجات میں اول آئیں گے، اور وہ ترتیب میں اول آئیں گے، اور وہ وقت میں اول آئیں گے۔ آمین۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے ویل ودن ویل، یعنی حرکت میں کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو پائنیئرز ہیں، وہ جو پروٹون بلیور ہے، وہ آپ کو کس طرح نظر آئیں گے؟ حرکت کے اندر نظر آئیں گے۔ وہ رسولی ایمان کے ساتھ چلتی ہیں۔ وہ کس سے چلتی ہیں؟ جو رسول چونکہ اول ہے بائبل مقدس میں، نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں اول ہیں، لہٰذا جب پروٹون بلیورز کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ رسولی مائنڈ کے ساتھ، وہ رسولی ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے وہ چلتی ہیں۔ لہٰذا جب کوئی ایماندار جو ہے کلیسیا کے اندر ہے تو کلیسیا جیسے میں بتا چکا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ایک پہیہ ہے، اور پہیے کے اندر ایماندار ہے، ٹھیک ہے۔ پہیوں کے اندر کیا ہے؟ ایک ویل ہے، ویل کے اندر کیا ہے؟ ایک ویل ہے، ایک چرچ ہے، اور چرچ کے اندر کون ہے؟ ایماندار۔ چرچ بڑا ویل ہے اور وہ ایماندار اس میں ایک جو ہے وہ ویل ہے۔ بائبل مقدس میں آسمان پر کیا ہو رہا ہے کہ پہیے کے اندر پہیہ، یہ جانداروں کی اندر آپ یہ دیکھتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص کلیسیا کا حصہ ہے تو وہ پروٹون بلیور ہونے کی حیثیت سے، اول درجے کا ایماندار ہونے کی حیثیت سے وہ چرچ کے اندر کیا نظر آئے گا؟ چلتا ہوا، حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آمین۔ یہ نہیں کہ وہ جامد نظر آئے گا، وہ جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پر بیٹھا نظر آئے گا۔ پھر یہ کس طور پر حرکت کرتا ہے؟ یہ روح القدس کی قوت سے کیا کرتا ہے؟ یہ حرکت کرتا ہے۔ آمین۔ کیسے حرکت کرتا ہے؟ وہ روح القدس کی حرکت سے، روح القدس کی قوت سے یہ کیا ہوتا ہے؟ پہیہ چلتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جانداروں کی روح کس میں پائی جاتی ہے؟ وہ پہیوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے روح القدس کی قوت، اور پھر ہماری جو ہے وہ ہمارا جذبہ، ہمارا جوش جب روح القدس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ روحانی جوش بنتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی مومنٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ آمین۔ لہذا جو ہے ہم اپنی زندگیوں کے اندر کیا کرنے والے ہوں؟ جو ہے مومنٹ کرنے والے ہوں۔ آمین۔ کیا کرنے والے ہوں؟ بولیے، پھر سے بولیے۔ میں نے کلیسیا کو ایک نام دیا، میں نے ایمانداروں کو ایک نام دیا، وہ کیا نام ہے؟ بولیے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پروٹون بلیور تو ہے ہی ہیں، ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ موور بھی ہیں۔ آمین۔ ساتھ ساتھ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ موور، یعنی حرکت کرنے والے، متحرک۔ آمین۔ لہذا ایک ایماندار ایک موور ہے، ایک چلنے والا یہ پرزہ ہے، وہ ویل ہے، وہ پہیہ ہے۔ آمین۔
चुनांचे आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या करने वाले हो, हरकत करते हुए नजर आएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपके साथ जो जिक्र करने जा रहा हूं कि जो ईमानदार हैं, जो क्या है, ईमानदार हैं, उनको क्या करना है। आज जो सब्जेक्ट आपके साथ लेकर आया हूं, सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स, नए म्यार तय करना। आमीन, नए म्यारों को क्या करना, क्या कर, स्टैंडर्ड्स जो म्यार हैं उनको बनाना, उनको सेट करना। सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स, नए म्यारों को तय करना। क्या करना, एक दूसरे को बताइए आपने क्या करना है। प्रोटोन का क्या मतलब है, बोलिए। प्रोटोन का क्या मतलब है? प्रोटोन का मतलब क्या है? पहला। प्रोटोन का मतलब क्या है? प्रोटोन का क्या मतलब है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अव्वल या पहला। आमीन। प्रोटोन का मतलब क्या है? अव्वल या पहला। इसी से एक और वर्ड है प्रोटोटाइप। क्या नाम है? प्रोटोटाइप। ये भी प्रोटोन से निकला है, प्रोटोन से ये ड्राइव हुआ है, जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल। क्या मतलब होता है? मॉडल, जिसका मतलब होता है नमूना, जिसका मतलब होता है मिसाल, जिसका मतलब होता है पैटर्न। आमीन। जब हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो ये किस वर्ड निकला है? प्रोटोन से प्रोटोटाइप वर्ड निकला है। प्रोटोन से क्या निकला है? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है मॉडल। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? मॉडल, पैटर्न। या मॉडल का मतलब होता है किसी चीज के मॉडल को हम क्या कहते हैं? नमूना। ठीक है। पैटर्न क्या करते हैं? ये एक पैटर्न के साथ चल रहा है, एक कायदे के साथ चल रहा है, एक जो है वो असूल के साथ चल रहा है, एक नमूने के साथ चल रहा है। आमीन। एक मिसाल के साथ चल रहा है। आमीन। ये एक मियार है। ठीक है। जब हम मॉडल की बात करते हैं, जब किसी नमूने की बात करते हैं, जब किसी पैटर्न की बात करते हैं, तो हम कहते हैं एक ये स्टैंडर्ड है, एक ये म्यार है। आमीन। किसी भी मॉडल को हम क्या कहते हैं, बोलिए? म्यार कहते हैं। अब ये देखिए कि कोई शख्स जो है अगर बिल्डिंग बनाता है तो उसका क्या करता है? एक प्रोटोटाइप बनाता है। उसका क्या बनाता है? एक मॉडल बनाता है, एक नमूना बनाता है। उस नमूने को, उस पैटर्न को इंजीनियर्स फॉलो करते हैं। उस नमूने को क्या करते हैं? जो है सारे मैसन्स जो है वो क्या करते हैं? मिस्त्री जो है वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। आमीन। लिहाजा जो है प्रोटोटाइप जो है एक किसको कहते हैं? मॉडल को कहते हैं। ये एक पैटर्न को कहते हैं। जो है किसी ने भी जो है कहीं से भी जो है कुछ देखना है तो वो क्या करेंगे? उस स्टैंडर्ड को जो उनके सामने है, उस म्यार को जो उनको दिया गया है, उस स्टैंडर्ड को सामने रखकर, उस म्यार को सामने रखकर, उस मॉडल को सामने रखकर क्या किया जाता है? काम किया जाता है। आमीन। प्रोटोन से क्या वर्ड निकलता बनता है? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? बोलिए। मॉडल। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? पैटर्न। आमीन। इसका मतलब है नमूना, इसका मतलब है मिसाल। हालेलुया। प्रोटोन जो बिलीवर्स हैं, जो अव्वल ईमानदार हैं, वो क्या करते हैं? नए स्टैंडर्ड बनाते हैं। आमीन। वो क्या करते हैं? बोलिए। नए स्टैंडर्ड बनाते हैं। वो जो है नए म्यार बनाते हैं। आमीन। वो क्या करते हैं? वो नमूनों के तौर पर, वो मॉडल्स के तौर पर आने वाली नस्लों के लिए उठ खड़े होते हैं। आमीन। वो स्टैंडर्ड बनाते हैं। आमीन। क्या बनाते हैं? बोलिए। वो स्टैंडर्ड बनाते हैं। आज दुनिया अपना नया स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश के अंदर लगी हुई है। अपना एक बिजनेस का स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। हर एक मुल्क का जो है स्टैंडर्ड जो है
है डिफरेंट है। अच्छा म्यार है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। हर एक जो है एक घरों के स्टैंडर्ड डिफरेंट है, जिंदगियों के स्टैंडर्ड डिफरेंट है, लेकिन चर्च का यह स्टैंडर्ड जो है वो किसके ऊपर है, आज ये बात करेंगे हम। आमीन। आज जो है प्रोटोटाइप के ऊपर बात होगी, आज मॉडल्स के ऊपर बात होगी, आज पैटर्न के ऊपर बात होगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो है हम क्यों स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, हम क्यों स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, हम क्यों मॉडल बनना चाहते हैं, हम क्यों जो है एक पैटर्न जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उन पैटर्न को फॉलो कर सके, उन मॉडल्स को जो है वो फॉलो कर सके। अगर आपने मॉडल नहीं बना, आपका कोई मॉडल नहीं है, अगर आपका कोई पैटर्न नहीं है आपके घराने का, आपकी जिंदगी का, तो याद रखिए आने वाली नस्लें जो है वो मॉडल्स तलाश करते रहेंगी। वो जो है अपने जो है वो स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा क्या होगा, जो है वो मुश्किल के अंदर चले जाएंगे, वो जो है पुलिस के हाथों चले जाएंगे। हमने जो है जनरेशन को बचाना है। मॉडल्स क्यों तैयार की जाती हैं, पैटर्न्स क्यों तैयार की जाती हैं, स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, म्यार क्यों बनाए जाते हैं। ये म्यार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आने वाले जो हैं वो उनको पता चले कि जो है इन पैटर्न्स को, इन मॉडल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए अदारों के जो है मॉडल्स हैं, उनके पैटर्न्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं। आने वाले जो है वो आने वाले जो है सारे जो है उनको फॉलो करते हैं। और कहा जाता है इस अदारे का जो है पैटर्न ये है, ये अदारा एक मॉडल है, इस मॉडल को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और याद रखिए जब प्रोटोन बिलीवर्स हैं वो पैटर्न बिलीवर्स हैं। आमीन। प्रोटोन बिलीवर्स क्या है, क्या कहलाते हैं, पैटर्न बिलीवर्स कहलाते हैं। वो अपने अंदर जो है एक पूरा कायदा रखते हैं, वो अपने अंदर पूरा मॉडल रखते हैं, वो अपने अंदर पूरा नमूना रखते हैं। हालेलुया। इसी तरह जो प्रोटोन चर्चेज हैं, जो अव्वल दर्जा के चर्चेज हैं, वो भी पैटर्न चर्चेज हैं। हालेलुया। वो भी मॉडल चर्चेज हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, मॉडल चर्चेज कहलाते हैं। और उनसे जो है क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और उनको जो है वो उनको माना जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब याद रखिए नमूना किस चीज के लिए होता है, नमूना या मॉडल किस चीज के लिए होता है, बोलिए, नकल करने के लिए होता है। ऐसे ही होता है ना कि उसकी नकल की जा सके। क्या किया जाए, उसकी नकल की जाए, वो डुप्लीकेट या हो सके, उसको डुप्लीकेट किया जा सके। आमीन। याद रखिए जो अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं और उनका जो तर्ज जिंदगी है, उनका जिंदगी बसर करने का तरीका इस तरह का होना चाहिए कि लोग उनकी नकल कर सकें। आमीन। या मुख्तसर तौर पर उनको फॉलो किया जा सके, उनको डुप्लीकेट किया जा सके। हालेलुया। वो उनका पैटर्न जो है, उनको वो अपना मॉडल, वो इस तौर पर मॉडल हो, इस तरह प्रोटोटाइप हो। ईमानदार प्रोटोटाइप होने चाहिए कि उनकी नकल की जा सके, उनको फॉलो किया जा सके, उनकी तर्ज जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। आमीन। हमारी तर्ज जिंदगी कैसी है? पहली बात, अगर हम अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं तो फिर प्रोटोटाइप भी होंगे, यानी मॉडल भी होंगे, यानी पैटर्न भी रखेंगे, यानी नमूना भी रखेंगे। और जो नमूना रखते हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। आमीन। हर एक मॉडल का एक स्टैंडर्ड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो हाथ खड़ा करें, हाथ हिलाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लिहाजा मैं अपनी तर्ज जिंदगी इस तरह रखूं कि मुझे नकल किया जाए, मैं ऐसी तर्ज जिंदगी रखूं कि मुझे फॉलो किया जाए। अगर मुझे कोई शख्स जो है वो फॉलो नहीं किया करता तो इसका मतलब ये हुआ है कि मैं प्रोटोटाइप नहीं हूं, यानी मैं मॉडल नहीं हूं, मैं जो है वो नमूना
आमीन। अगर किसी को समझ आई तो वो खड़ा होकर बताए। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा मुझे तो इसका मतलब मैं प्रोटोटाइप नहीं हूँ। ये प्रोटोटाइप का मतलब होता मॉडल, पैटर्न, ठीक है। और यह कोई शख्स मॉडल बन जाए तो वो स्टैंडर्ड, उसका एक स्टैंडर्ड क्रिएट होता है और फिर स्टैंडर्ड नजर आता है कि इस मॉडल का एक स्टैंडर्ड है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। म्यार बनते हैं, म्यार ऐसे नहीं बनते हैं, म्यार प्रोटोटाइप से बनते हैं, म्यार मॉडल से बनते हैं, म्यार पैटर्न से बनते हैं। आमीन, ऐसे म्यार नहीं बनते हैं। कुछ यह मॉडल बनना पड़ेगा। ईमानदारों को अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बनाना होगा ताकि क्या हो सके, वो यह प्रोटोटाइप बन सके। आमीन, वो मॉडल बन सके। मैं बार बार इन बातों को क्यों दोहरा रहा हूं? ताकि आप इन बातों को समझ जाएं। आमीन। मैं कुछ चंद एक स्टैंडर्ड बयान करूंगा और फिर अगली दफा चंद स्टैंडर्ड बयान करूंगा ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर जो प्रोटोन बिलीवर्स हैं, जो अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं, वो अपनी जिंदगियों के अंदर यह स्टैंडर्ड कायम कर सके। आमीन। क्या कायम कर सके? स्टैंडर्ड जब वो कायम कर सके। हालेलुया। और ये देखिए, अगर हम खुदा की बादशाही के लायक जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हमारी क्या की जानी चाहिए? नकल करनी चाहिए। अगर हम खुदा की बादशाही के लिए जिंदगी बसर नहीं कर रहे तो फिर हमारे लिए हमारे जो है ईमानदार जो है और आपके साथी जो है वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। हमारा मकसद ये है कि खुदा की बादशाही के लिए एक ईमानदार जो है वो जिंदगी बसर करे और वो दूसरा उसको फॉलो करे। और यही जो है तहरीक है जो आपकी जिंदगियों के अंदर होनी चाहिए। आमीन। बाइबल मुकद्दस प्रोटोटाइप से भरी हुई है, बाइबल मॉडल से भरी हुई है, पैटर्न से भरी हुई है। और अगर आप किसी एक मॉडल को पकड़ लें तो आप जो है कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप जब बाइबल के स्टैंडर्ड को जब पकड़ लें तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हालेलुया। याद रखिए कि जो प्रोटोटाइप अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, वो जो मॉडल हैं, जो नमूने हैं, जो पैटर्न रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो क्या करते हैं? वो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे नक्श छोड़ते हैं, ऐसे नक्श छोड़ते हैं कि दूसरे लोग उनकी जिंदगियों और उनकी खिदमतों से क्या करते हैं? जो है वो उनको फॉलो करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनकी जिंदगियों के अंदर आसमानी तरीके, नमूने, असूल और जो है कायदे नजर आते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप बाइबल के अंदर झांकिए, बाइबल क्या फरमाती है? दाऊद एक प्रोटोन बिलीवर था। दाऊद क्या था? प्रोटोन बिलीवर था। वो प्रस्तिश के लिए एक नमूना है। वो प्रस्तिश के लिए क्या है? वो एक नमूना है। वो प्रस्तिश के लिए एक मॉडल है। वो प्रस्तिश के लिए एक प्रोटोटाइप है। अगर किसी शख्स ने जो है वो प्रस्तिश की बात करनी या प्रस्तिश को सीखना है या प्रस्तिश को जानना है तो वो क्या कहां पर जाएगा? वो किसको फॉलो करेगा? वो दाऊद को फॉलो करेगा। और लास्ट सीरीज में मैं जो है वो डिटेल के साथ बता चुका हूं कि किस तरह पर जो है खुदा दाऊद के खेमे को खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल था। हालेलुया। वो पैटर्न बिलीवर था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रस्तिश के लिए पैटर्न रखता था, वो प्रस्तिश का मॉडल था, वो जो है वर्शिप प्रोटोटाइप था। आमीन। अगर आप कोई वर्शिपर आज जो है वर्शिप करना चाहता है तो वो कौन सा पैटर्न यूज करेगा? वो डेविडिक पैटर्न इस्तेमाल करेगा। आमीन। और फिर अगर किसी ने जो है फेथ पैटर्न लेना है, फेथ मॉडल लेना है, ईमान का मॉडल, ईमान का नमूना लेना है, तो उसको किसको फॉलो करना पड़ेगा? इब्राहिम को। हालेलुया। इब्राहिम पैटर्न या फेथ पैटर्न रखता था। आमीन। इब्राहिम फेथ
बोलिए बाप कहलाता है। यीशु ये कौन है? ये वारफेयर पैटर्न रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वो क्या रखता है? वो जंगजू का नमूना रखता है। अगर किसी शख्स ने जंगजू बनना है, अगर किसी शख्स ने वो वारफेयर सीखनी है, वो जंगजू होने का एक बहुत बड़ा प्रोटोटाइप है, वो जंगजू होने का एक बहुत बड़ा मॉडल है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने दुआ का नमूना सीखना है, अगर आपने दुआ का पैटर्न लेना है, उसका मॉडल लेना है, आप एलिया को फॉलो करें। बाइबल फरमाती है वो हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने जोर से दुआ की तो उसे कहा कि पानी जब मुझे ना बरसे तो नहीं बरसा, उसे कहा मी बरसे तो क्या हुआ? मी बरसा। वो प्रेयर करने वाला था। हालेलुया। वो गिरमत की चोटी पर बैठ जाता था और वो दुआ करता था। अगर किसी ने इन बातों को सीखना है तो हमें प्रोटोटाइप को जाना, प्रोटोटाइप को फॉलो करना होगा, हमें मॉडल्स को फॉलो करना होगा, हमें नमूनों को फॉलो करना होगा। इससे फिर हम स्टैंडर्ड मेंटेन करने पाएंगे, इससे फिर हम स्टैंडर्ड बनाने पाएंगे। आमीन। आप सुन रहे हैं? आप समझ रहे हैं? बोलिए बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल विजन्स और वो ख्वाबों का देखने वाला था। अगर किसी शख्स ने पैटर्न फॉलो करना है, रोयात का या ड्रीम्स का पैटर्न मॉडल, तो किसके रजू करना पड़ेगा? आपको दानियल के किताब को देखना पड़ेगा कि रोयात क्या है, ख्वाब क्या है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं जिसका बयान नहीं हो सकता है, लेकिन मैं चंद चीजें बताकर आपको उभार रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं, नबी का नमूना पाना चाहते हैं, नबी का पैटर्न, नबी का मॉडल देखना चाहते हैं, तो आपको किससे रजू करना पड़ेगा? सैमुएल नबी का नमूना रखता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखेंगे कि उसने नबियों के लिए स्कूल बनाया। ये बुनियाद सैमुएल ने रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे खुदा के कलाम को जब मिट्टी में नहीं मिलने दिया, उसकी कोई बात मिट्टी में मिलने नहीं दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों, हम अपनी जिंदगी के अंदर मॉडल्स रखने वाले हों। ये मॉडल्स हैं, ये प्रोटोटाइप्स हैं, ये पैटर्न हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। आज हम दाऊद को, हम दानियल को, हम इब्राहिम को, हम सैमुएल को, यीशु को, एलिया को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो अपने आप में प्रोटोटाइप हैं, वो अपने आप में मॉडल हैं, वो पैटर्न रखते हैं। आपका पैटर्न क्या है? आमीन। आपका पैटर्न क्या है? मैं चंद एक पैटर्न आपको बताऊंगा। आपको आपका स्टैंडर्ड मेंटेन किसका करना है, हमारे स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, याद रखिए, मॉडल स्टैंडर्ड रखता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने रसूल होने का एक जबरदस्त नमूना दिया है। आमीन। लिहाजा हम रसूल की खुसूसियात को या रसूल होने के नमूने को देखना चाहते हैं तो हम किससे रुजू करते हैं? हम पौलुस रसूल की लाइफ को जब वो देखते हैं, वो अपने आप में पैटर्न है, वो अपने आप में मॉडल है, हम उसे एक प्रोटोटाइप कहते हैं। लिहाजा ये सब प्रोटोन हैं। आमीन। इब्राहिम प्रोटोन, एलिया, इब्राहिम, सैमुएल, यीशु, दानियल, पौलुस और यीशु मसीह भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है। हालेलुया। वो मॉडल है, वो एक कामिल आसमानी नमूना है और उसने बताया है खुदा के बेटे और बेटियां होना कैसा है। हालेलुया। खुदा का बेटा बनना, खुदा की बेटियां बनना है ना आपको, तो फिर एक रोल मॉडल है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमानदारों के लिए मैं बात कर रहा हूं। हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, मैं खुदा का बेटा बेटी बनना चाहता हूं, तो मैं किसको फॉलो करूं? एक यूनिक बेटे को फॉलो करूं जिससे साबित किया है, बेटा होना साबित किया। बाइबल मुकद्दस फरमाती कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा ठहरा है। हालेलुया। अगर किसी ने बेटा बेटी बनना है खुदा का, तो फिर कौन सा नमूना, कौन सा प्रोटोटाइप हो, कौन सा मॉडल हो, कौन सा पैटर्न मैं यूज करूं? क्राइस्ट पैटर्न माय डियर।
हालेलुया। प्रोटोन बलीवर्स के अव्वल दर्जे के ईमानदारों के म्यार क्या हैं? हाँ जी, क्या कौन से म्यार होते हैं? गौर से सुनिए। पहला, प्रोटोन believers are the people of conviction. आमीन। वो क्या है? जो ईमानदार, जो पहले ईमानदार या अव्वल ईमानदार हैं, वो कैसे लोग हैं? ये people of conviction हैं। जब हम conviction की बात करते हैं, इसका मतलब है यकीन कामल रखने वाले, इत्मीनान से भरे हुए लोग, इत्मीनान कुल्ली, जिसके अंदर इत्मीनान जो है किसी बात के लिए कुल्ली तौर पर इत्मीनान होता है, या इसको आप आसान तरीके से जान सकते। कन्विक्शन क्या चीज है? जब मैं ये कहता हूं कि एक ईमानदार जो है वो जो है पीपल ऑफ कन्विक्शन है, ईमानदार जो है वो कौन क्या कहलाते हैं? पीपल ऑफ कन्विक्शन कहलाते हैं। जिसका मतलब है कि ये ऐसे लोग हैं जो यकीन दहानी, इत्माद, मकाम, कायलियत और अकीदा या नजरिए के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर जो है वो कायम है। वो इन चीजों से कायल है। किसी भी चीज से कायल हो जाना, इसको कन्विक्शन कहते हैं। मैं कन्विंस हूं, कहते हैं ना, मुझे कन्विंस करो, मुझे कायल करो, ठीक है? मैं तो इस बात के ऊपर कायल हूं, आप मुझे अपनी बात के ऊपर कायल करो, ऐसे कहते हैं ना। याद रखिए, बड़ा गौर से सुनिए, ईमानदार, गौर से सुनिए, क्या है ईमानदार? वो कैसे हैं? वो कायलियत से भरे हुए लोग हैं। वो किससे भरे हुए लोग हैं? कायलियत से भरे हुए लोग हैं। वो जोश और जज्बे से भरे हुए लोग हैं। वो दोगले नहीं होते हैं। वो जिस कायलियत से भर चुके हैं, जिस कायलियत से जब मामूर हो चुके हैं, जो कायलियत उनकी जिंदगी के अंदर आ चुकी है, वो ना उससे तस होते हैं, ना मस्तस नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? वो कायम दायम रहते हैं। वो हिलते नहीं हैं, वो कायम रहते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा ईमान किन चीजों के ऊपर है। हालेलुया। कि हम खुदा की कायलियत रखते हैं। वो इसलिए वो खुदा के कलाम की खातिर, गौर से सुनिए, जो अपने ईमान के ऊपर कायल हो चुके हैं, मसीह के ऊपर ईमान रखने के इतने कायल हो चुके हैं कि वो कलाम की खातिर अज़ियत बर्दाश्त करने से भी कतराते नहीं हैं। हालेलुया। और उनकी जिंदगियों के ऊपर जब पहाड़ टूट पड़े, वो क्या करते हैं? वो मगलूब नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज भाइयों, अगर हम जो है अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं, तो हम ऐसी कायलियत से भरे हुए हैं, ऐसी यकीन दहानी से भरे हुए हैं, ऐसे एतमाद से भरे हुए हैं, ऐसी कायलियत का शिकार हैं, ऐसे अकीदे और नजरिए से भरे हुए हैं कि हम उससे आगे पीछे नहीं होते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और ये है वो पैटर्न जिससे हमें, ये है वो पैटर्न, ये स्टैंडर्ड है, ये म्यार है, ये एक ईमानदार का म्यार है। एक ईमानदार का म्यार क्या है? कि वो जिस चीज से कायल हो चुके हैं, वो इससे आगे पीछे नहीं होते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी मुसीबत आई तो क्या हुआ, ये प्रोटोन बलीवर नहीं है। ये स्टैंडर्ड नहीं है ईमानदारों का। बीमारी आई तो क्या हुआ, अजियत आई तो क्या हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। ये पीपल ऑफ कन्विक्शन नहीं है। आपकी कन्विक्शन कैसी है? आपकी कायलियत कैसी है? आपकी यकीन दहानी कैसी है? आप किस बात के ऊपर या कायम है? आपकी कन्विक्शन कैसी है? आपको मालूम है कई दफा कन्विक्शंस ऐसी होती हैं कि लोगों को या अच्छी नहीं लगती कन्विक्शन।
یہ جو ہے یقین دہانی رکھتا ہے، یہ ایک ایسا اعتماد اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے. کئی لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں، کئی لوگ جو کہتے ہیں یہ تعصبی ہے، یہ اپنے عقیدے کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ جو ہے اس سے ٹفرس نہیں ہو رہا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، بائبل مقدس جو ہے وہ پیپل آف کنوکشن سے بھری ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی اس کنوکشن کی باعث کیا ہوا ہے، اس کا سر قلم کر دیا گیا. آمین. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کنوکشن کے اوپر قائم تھے، اپنی یقین دہانی کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، اپنی قائلیت کے اوپر قائم تھے. اس لیے انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی ہے. اگر ہم اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، ایمانداروں کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ بلیو کر چکے ہیں، جس چیز کے اوپر وہ کھڑے ہو چکے ہیں، جس اعتماد کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، جس نظریے کے اوپر، عقیدے کے اوپر وہ کھڑے ہو چکے ہیں، وہ اسے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. ہاللیلویہ. وہ پیپل آف کنوکشن جو ہے رکھتے ہیں. ہم انہیں پیپل آف کنوکشن کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قائل کیے گئے لوگ ہیں. آمین. اور ان کو جو مرضی کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تو یہ بات کہنے سے باز آ، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم باز نہیں آئیں گے. جو کچھ ہمیں خدا نے کہا ہے ہم وہی کہیں گے. ہاللیلویہ. آپ کو معلوم ہے مارٹن لوتھر جو ہے وہ کیسا شخص تھا؟ the man of conviction تھا. اور اس کو جو ہے پورا یورپ ایک سائڈ پر تھا، اور جو ہے پورا ایک پورا عقیدہ اس کے اگینسٹ ہو گیا. اور نے کہا کہ جس چیز سے میں قائل ہو چکا ہوں نام جو ہے میں اسے ہل بھی نہیں سکوں گا. وہ مار دیا گیا، وہ جو ختم کر دیا گیا، لیکن وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹا رہا. ہاللیلویہ. عزیز بھائیو بھائیو، ہم اپنا یہ سٹینڈرڈ مینٹین کریں. اگر آپ مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اوپر اور اس کی جو ہے اس کے مرنے دفن جیوتے کے اوپر بلیو ہے، روح القدس کی قدرت کے اوپر بلیو ہے، یسوع مسیح کے خون کے اوپر بلیو ہے، تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو جو ہے دائیں بائیں کر رہی ہے؟ پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو پروٹون بلیور بنانے سے روک رہی ہے؟ آپ کی چیز سے کنونسڈ ہیں. ہماری کنوکشن کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں، میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ کلیسیوں کے اندر جو ہے ہم اپنے آپ کو پیپل آف کنوکشن کہنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کنونسڈ ہیں، ہم قائل شدہ لوگ ہیں، ہم جو ہے مسیح کے عقیدے کے پر مضبوطی سے جو وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر ٹائم کی بات کی جائے تو جو ہے چرچز کے اندر جو ہے ٹائم پر آتے بھی نہیں ہیں. یہ کون سی کنوکشن ہمارے پاس ہے؟ اگر ہم جو ہے خوشخبری سنانے کی یا ایمان کی یا بانٹنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم اس سے کنونسڈ نہیں ہیں. یہ کنوکشن جو ہے پادریوں کی ہے، ایوانجلسٹ کی ہے. نہیں میرے بھائیوں بہنوں، ہم ایمان جو ہے مسیح کے اوپر رکھتے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں کہ اگر گلا بھی کاٹ دیا جائے گا تو اس پر قائم رہیں گے. ہاللیلویہ. اسٹیفنس اپنی کنوکشن کے اوپر قائم تھا، اور جیسے سارے یہودی اس کے پر پتھر برسا رہے تھے، اور اسے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم اپنا پتھر مارنا بند کرو. جس چیز کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا تھا، جس چیز سے وہ قائل تھا، وہ یسوع مسیح کی گواہی تھی، وہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا تھا، وہ یسوع مسیح کا مرنا دفن ہونا جی اٹھنا تھا. اور انہوں نے یہ دلیری سے کہا ہم اس بات کے کیا ہے؟ بولیے گواہ ہیں. ہاللیلویہ. یہ کنوکشن ہے جو ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے اندر رکھنی ہے. یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہوگا ہر ایک شخص کو کہ نہیں. آمین. پریز دی لارڈ. یہ کیا کرے گا؟ یہ دنیا کو الٹ دے گا، یہ دنیا کے اوپر نسلوں پر اثر کرے گا. آمین. یہ نسلوں کے اوپر کیا کرے گا؟ بولیے اثر کرے. جو پیپل آف کنوکشن ہیں، جو کنونسڈ لوگ ہیں، جو قائل شدہ لوگ ہیں، جو یقین دہانی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، جو اعتماد سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، جو مسیحی عقیدے کے اوپر جو ہے وہ 901% قائم ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مار دو. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. جان ناکس جو ہے یہ اسکاٹ لینڈ کے اندر زبردست پریچر گزرا ہے. جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی پریچنگ کے باعث کیا ہوا؟ اس نے جو ہے اسکاٹ لینڈ کو ہلا کر رکھ دیا.
अगर आप जो हिस्ट्री की किताबें पढ़े तो आपको मिलेगा उसके पैगामात ने उमरा को और उसने जो है बादशाहों को जो है हला कर रख दिया। वो डर गए। जॉन नॉक्स की जो है आप जो है बायोग्राफी पढ़े, आप उसकी जो है लाइफस्टाइल पढ़े, उसकी प्रीचिंग सुने, आपको मालूम पड़ेगा कि उसने किस तरह जो है स्कॉटलैंड के अंदर एक नया जो है एक नई बेदारी जो है पैदा की। स्कॉटलैंड रिवाइवल जो है ये इसी शख्स का जो है वो उस बुनियाद है। अजीज बहनों भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ चेंज पैदा करें अपने घरों में, अपनी जिंदगियों के अंदर, अपनी कलीसियों के अंदर, ये कौन पैदा कर सकते हैं? पीपल ऑफ कन्विक्शन। आमीन। प्रोटोन बिलीवर्स आर पीपल ऑफ कन्विक्शन। ये वो लोग हैं जो कन्विंस्ड हैं। आमीन। अगर आप कुछ भी जो है, अगर आप जो है बात को जो है शक के अंदर पड़ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप कन्विंस्ड नहीं हैं। आपकी बातों के अंदर झोल नजर आता है, इसका मतलब आप कायल शुदा लोग नहीं हैं। आप यकीन दहानी के अंदर जरा से भी 1% या 0.1% भी जो है वो खराबी नजर आती है, आप जो कन्विंस्ड नहीं हैं, आप कायल शुदा लोग नहीं हैं। तो ईमानदारों का स्टैंडर्ड क्या है? ईमानदारों का स्टैंडर्ड क्या है? ईमानदारों का स्टैंडर्ड ये है कि वो कौन से लोग हैं? वो कायल शुदा लोग हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर प्रोटोन बिलीवर जो है वो बड़े पैशन के साथ खिदमत करते हैं। प्रोटोन बिलीवर क्या करते हैं? पैशन के साथ खिदमत करते हैं। ये दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड क्या है? वो कायल शुदा है। एक स्टैंडर्ड है वो जज्बे से, वो जोश से, वो पैशन से क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। अगर आप अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं तो आप क्या हैं? आप भरे हुए लोग हैं। आमीन। कन्विंस्ड हैं। अगर कन्विंस्ड हैं तो कन्विंस करेंगे, अगर कायल शुदा हैं तो कायल करेंगे। आमीन। जैसे जहां पौलुस रसूल ने कौम और मुल्कों को कायल कर लिया क्योंकि वो खुद कायल हो चुका था। अगर हम कायल शुदा हैं तो हम कायल कर लेंगे, अगर हम कायल शुदा नहीं हैं तो हम कायल नहीं करेंगे। आमीन। दूसरा स्टैंडर्ड जो ईमानदार का है, जो एक अव्वल दर्जे की ईमानदार को रखना है कि वो जो पैशन से भरा हुआ है। आमीन। अव्वल दर्जे के ईमानदार जोश और खरोश से खिदमत करते हैं। ये नहीं आ जाओ, कहते ना कि भाई जी बहन जी आना है, अच्छा वो 10 मिनट सोचने के ऊपर लग जाते हैं और मुझे कहते हैं अच्छा मैं जरा देखूंगा, खिदमत करने के लिए बारे में सोचूंगा, मैं पूछ लेता हूँ। यीशु मसीह ने कहा ऐसे को हमें नजदीक नजर नहीं करनी, ठीक है, हाथ पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखने वाले ये लोग हैं, वो पैशन से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको मालूम है पैशन हरकत पैदा करता है। पैशन क्या करता है? हरकत। हरकत कैसे आती है? पैशन से। मोशन मूवमेंट कैसे आती है? ये पैशन से, ये जोश और जज्बे के साथ ये हरकत पैदा होती है। यह एक बड़ा जोरदार असर पैदा करती है। पैशन हमारी जिंदगियों के अंदर जोरदार असर पैदा करता है। और ये देखिए कि जब ये पैशन हमारी जिंदगियों के अंदर होता है तो एक बड़ी ख्वाहिश पैदा होती है। किसी चीज की ख्वाहिश जो है उस जज्बे के वजह से है। बड़ी ख्वाहिश इसका मतलब बड़ा जज्बा, छोटी सी ख्वाहिश छोटा सा पैशन। अगर हम चाहते हैं कि उसकी मरादी और गवाही दें, ये बगैर जज्बे के साथ और बगैर पैशन के साथ नामुमकिन है। अगर हम ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के लिए जिंदगी बसर करें, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की गवाही दें, हम ये चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, एक स्टैंडर्ड अपनी जिंदगी के अंदर लेना होगा। और वो क्या प्यार है कि एक ईमानदार जज्बे से, जोश से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करेगा? वो जज्बे से, वो जोश से, वो क्या होगा? वो प्रस्तुत करेगा, खिदमत करता हुआ नजर आएगा। वो है
छूटा हुआ नजर आएगा, वो उससे पूछा जाएगा ये तू क्यों जो है प्रस्तुत कर रहा है, मुझे मैं जज्बे से जोश से भरा हुआ हूँ। इसे बाइबल ये फरमाती है रूहानी जोश से भरे रहो। आमीन। यीशु मसीह जोश से भरा हुआ था, वो पैशनेट शख्स था, और आपको मालूम है कि उसका पैशन देखना है। कहा गया है कि मुझे मेरे बाप के घर की गैरत खा गई। हालेलुया। मुझे मेरे बाप के घर की क्या हुआ, गैरत खा गई। यूहन्ना 2:17 में जब हम पढ़ते हैं, देखा वो आपने मुझे मेरे बाप के घर की गैरत, लिखा है कि मुझे मेरे बाप के घर की गैरत खा गई। ऐसा पैशन किसके पास है जिससे खुदा के घर की, खुदा के घर के लिए गैरत हो, खुदा के घर के लिए जोश जज्बा पाया जाए। आमीन। ये ईमानदारों का स्टैंडर्ड है जो हमें कायम करने की जरूरत है। अगर जो है प्रोटोन बलीवर हैं, अगर अव्वल दर्जा के बलीवर हैं, तो हमारा म्यार क्या है, बोलिए। हमारी जिंदगी में क्या होगा, पैशन। हमारी जिंदगी में क्या पाया जाएगा, जोश, जज्बा। हालेलुया। जब गीत की बारी आएगी तो क्या किया जाएगा यीशु के लिए, जोश से गाएंगे। अगर खिदमत की बारी आएगी तो क्या किया जाएगा, जोश और जज्बे के साथ उसकी गवाही देंगे। बहनों भाइयों, ये खामोशी रहने वाली बात नहीं है। जो जज्बा है फूट निकलता है, जोश क्या निकलता है, फूट निकलता है। ये हरकत करना शुरू कर देता है। जोश जज्बे को ठंडा नहीं किया जा सकता है। लावे को जो है कौन सी चीज है जो लावे को जो है वो रोक सकती है? कोई है चीज जो लावे को जो है वो रोक सके, बोलिए। ना समुद्र का पानी उसको ठंडा कर सकता है। सुनामी जब आता है तो एक्चुअली क्या होता है, नीचे से ऐसे उठता है लावा, उसको जो है पानी भी जो है उसको रोक नहीं सकता है। जो है किस तौर पर जमीन के अंदर से लावे निकलते हैं, उसको कोई शख्स रोक नहीं सकता है। तो फिर अगर ईमानदार है तो हमारा जज्बा जो है वो झाग की तरह क्यों बैठ गया है? ये रूहुल कुदस की आग से ऐसा भड़कता चला जाना चाहिए कि ये फूट निकले। हालेलुया। ये निकल पड़े और ये हरकत के अंदर नजर आए, और ये खुदा का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर से नजर आए। ये एक प्रोटोन बिलीवर का स्टैंडर्ड है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर जोश और जज्बा रखता है। आमीन। और तीसरी बात है कि प्रोटोन बिलीवर्स आर एक्सट्रीम। आपने एक्सट्रीमिस्ट सुना है वर्ड, एक्सट्रीमिस्ट? ये आपको जो है दुनिया के अंदर जो है एक्सट्रीमिस्ट नजर आते हैं। जो है प्रोटोन बिलीवर्स आर एक्सट्रीम, ये इंतहा तक जाते हैं। हाँ, एक्सट्रीम का क्या मतलब है? किसी चीज की इंतहा का होना। आमीन। किसी चीज का इंतहा का होना। वो अपने अंदर बड़ा जो है ग्रेट डिग्री रखते हैं, वो अपने अंदर इतना पॉइंट रखते हैं, इतना हैवी किस्म का जिसका बयान भी नहीं किया जा सकता। जो एक्सट्रीम जो है एक्सट्रीम लोग होते हैं, गौर से सुनिए, ना वो बिकते हैं ना वो झुकते हैं। हालेलुया। इब्तदाई कलीसिया के अंदर लोग एक्सट्रीम जो है वो स्टैंडर्ड अपने अंदर रखते थे, इसलिए उनको जो है वो शेरों के जो है स्टेडियम्स के अंदर फेंक दिया गया। उनको जो है जानवर की खाल के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया, वो लपेट दिया गया और उनके सर कलम कर दिए गए और उनको भूखा रखा गया। जो है हमारा पूरा रशिया चाइना जो है इसमें जो है वो गलता सड़ता रहा। हमारे जो है ईमानदार, जब आप उनकी हिस्ट्रीज को, आप उनकी बुक्स को पढ़ें कि किस तौर पर जो है शहीदान रूम, शहीदान कारतूज पढ़े, आपको मालूम पड़ेगा किस तौर पर लोगों ने जो है जाने कुर्बान की है। वजह क्या है? द प्रोटोन बिलीवर्स आर एक्सट्रीम। वो जो है इस लेवल के लोग हैं, ना वो बिकते हैं ना वो झुकते हैं, बल्कि यीशु मसीह के लिए हर एक जो है हर एक दुख, हर एक तकलीफ, मुसीबत सहने के लिए तैयार हैं। वो लोग जो है
कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो समझौता नहीं करते हैं। हम बहुत सारी चीजों के ऊपर जब वो समझौता कर लेते हैं, वो अपनी इंटेग्रिटी को जो है वो कायम रखते हैं, वो जो है वो अपने अंदर एक खास इंटेग्रिटी रखते हैं। क्या हम एक्सट्रीम जो है लेवल अपनी जिंदगी के लिए रखते हैं? ऐसा लेवल जिसमें जो है हम जो है खुदा की प्रस्तिश, खुदा की सताइश, खुदा की इबादत, खुदा उनकी गवाही, और जो है ये जो स्टैंडर्ड जो है खुदा ने कलीसियों के अंदर जब बाइबल मुकद्दस में बयान की है, उससे हम आगे पीछे तो नहीं हो जाते हैं, हम उसे तर्क तो नहीं कर देते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर देते हैं। अजीज बहनों भाइयों, अगर हमारी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज पाया जाता है, अगर हम जो है बहुत सारी बातों में समझौता कर रहे हैं, तो इससे निकलिए, इससे जो है बाहर आइए। इसी से जब हम बाहर आएंगे तो फिर बयान करेंगे कि मैं अव्वल ईमानदार हूँ। हालेलुया। और फिर ये चौथी बात जो बताऊंगा कि प्रोटोन बिलीवर्स आर पीपल ऑफ करेज। वो क्या है? वो कौन क्या कहलाते हैं? वो कैसे लोग हैं? बाहिम्मत लोग हैं। वो हौसलामंदी अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, वो दलेर हैं, वो बोल्ड हैं, वो करेज अपने अंदर रखते हैं। वो ये नहीं कि जहाँ थके मांदे हैं, वो ये नहीं कि उनकी हौसला शिकनी हुई है, वो जो है हर वक्त जो है कर्ज रखते हैं, हौसले से भरे हुए लोग हैं। और यही ईमानदारों का स्टैंडर्ड है। आमीन। ईमानदारों का स्टैंडर्ड क्या है? उनकी जिंदगियों के अंदर जुर्रतमंदी पाई जाती है, उनकी जिंदगियों के अंदर दलेरी पाई जाती है, बोल्डनेस पाई जाती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है साधक शेर बब्बर की मानद है। साधक क्या है? बोलिए। जब शेर बब्बर की बात की जाती है, शेर की बात की जाती है, तो करज की बात की जाती है, बोल्डनेस की बात की जाती है। अगर हम शेर बब्बर हैं तो फिर क्या नजर आना चाहिए? हमारी जिंदगियों के अंदर दलेरी, हमारी जिंदगियों के अंदर करज। हालेलुया। और आपको मालूम है कि यहूदा का जो साइन क्या है? लॉयन। आमीन। Praise the Lord। यहूदा का साइन क्या है? बोलिए। शेर। ठीक है, शेर दलेरी को एक तस्वीर है। जब यहूदा का साइन जब शेर है तो यहूदा का क्या मतलब है? सताइश। ईमानदार प्रस्तिश में दलेर, ईमानदार रूहों और शैतान की कुव्वतों के सामने दलेर। ये नहीं बदरू को देखकर क्या हुआ? भाग गए। बदरू को देखा तो क्या हुआ? भाग गए। शैतान को देखा तो क्या हुआ? भाग गए। जो है मुसीबतें आई तो क्या हुआ? भाग गए। बल्कि वो क्या करते हैं? वो मुकाबला करते हैं और उस पर गाली पाते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? बोलिए। गाली पाने वाले लोग हैं। वो अपने अंदर ऐसी जुर्रत रखते हैं कि वो इब्लीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ खड़े होते हैं। लिहाजा हम अपनी जिंदगियों के अंदर ये स्टैंडर्ड पे कायम करें। क्या उनका स्टैंडर्ड? पहला स्टैंडर्ड क्या है? हम जो है कायल शुदा लोग हैं। हमारी जिंदगियों में दूसरा स्टैंडर्ड क्या है? हम पैशनेट लोग हैं, जोश और जज्बे से भरा हुआ स्टैंडर्ड मियार अपनी जिंदगियों के अंदर कायम करें। हम जो है एक्सट्रीम जो है लेवल अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, और अपनी जिंदगी के अंदर कर्ज, अपनी जिंदगी के अंदर दलेरी, अपनी जिंदगी के अंदर जुर्रत, और अपनी जिंदगी के अंदर बेबाकी, अपनी जिंदगी के अंदर बेखौफ हैं। आमीन। अगर ये चीजें हैं, ये हमारी निशानदेही करती है कि हम क्या है? ऐसे प्रोटोटाइप लोग हैं। क्या आप प्रोटोटाइप हैं? क्या आप मॉडल हैं? क्या आप नमूना हैं? क्या आप अपने पैटर्न रखते हैं? अगर पैटर्न है, पैटर्न कैसे नजर आता है? आपकी कायलियत से पता चल जाएगा कि आप एक मॉडल हैं। आपके पैशन से पता चल जाएगा कि आप क्या है? प्रोटोटाइप हैं, मॉडल हैं, नमूना है। आप जो है आपकी एक्सट्रीमिस्ट जो है डिग्री बताएगी कि आप क्या है? प्रोटोटाइप हैं। आपकी करज बयान करेगी कि आप क्या है? मॉडल हैं। अगर ये चार बातें जो अभी बताई हैं नहीं हैं तो भाइयों, आप प्रोटोन बिलीवर की बाबत सोच भी नहीं सकती हैं। प्रोटोन बिलीवर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। और ये स्टैंडर्ड है जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं? प्रोटोन बिलीवर होने को पहुंच सकते हैं। प्रोटोन बिलीवर अपनी जिंदगी के अंदर ये स्टैंडर्ड दिखाता है। आमीन। आगे अपने सब को झुकाएं और देखिए ये स्टैंडर्ड मेरी जिंदगी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अब से इसको अपनी जिंदगी के अंदर कायम करना शुरू करें। अब ये अहद करें कि मैं एकदम मॉडल बनूंगा
मैं ऐसा प्रोटोटाइप बनूंगा कि लोग मुझे फॉलो कर सके। मैं ऐसा नमूना बनूंगा, ऐसा पैटर्न अपनी जिंदगी के लिए रखूंगा जिसको लोग फॉलो कर सकें, जिससे दूसरे ईमानदार भी जो है देख सकें और मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह हो जाएगी। मैं अपनी जिंदगी के अंदर कायदे दिखाऊंगा, अपनी जिंदगी के अंदर खुदावन जो है वो पैशन दिखाऊंगा, एक्सट्रीम जो है वो एक्सट्रीम दिखाऊंगा, खुदावन खुदा अपनी जिंदगी में कर्ज दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज ये याद करें कि मैं इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम अपने हाथ दिल के ऊपर रखें और खुदा उनसे कहें कि खुदा पाक रूह मेरी मदद कर। मैं साकल नहीं होना चाहता, मैं जामद नहीं होना चाहता, बल्कि ऐ खुदा आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के खून से और रूहुल कुदस की आग से, उसकी कुदरत से मैं खुदा तेरी गवाही के लिए, तेरी खिदमत के लिए, तेरे काम के लिए, तेरी प्रस्तुति के लिए, तेरी इबादत के लिए, तेरी सताइश के लिए हमेशा खुदा जो है सरगर्म रहूंगा। मेरी जिंदगी के अंदर एक्टिवेशन नजर आएगी और मैं खुदा सुस्त नहीं रहूंगा। मैं लेजीनेस की स्पिरिट को अपनी जिंदगी से तेरे नाम से दूर करता हूँ। इसे खुदा तू मेरी मदद कर। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करता हूँ आज इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए जिसमें तूने हमें जमा किया कि ऐ खुदा हम उन स्टैंडर्ड को जान सके जिसके जरिए से ऐ खुदा हम दूसरों के लिए एक नमूना बन सकते हैं, दूसरों के लिए ऐ खुदा एक पैटर्न बन सकते हैं। लिहाजा हमें जो है पैटर्न बलीवर बना दे, लिहाजा खुदा हमें अव्वल ईमानदार का दर्जा दे दे, ताकि खुदा ये म्यार हमारी जिंदगियों के अंदर कायम हो जाए और यूं हम दूसरों के लिए खुशी, बरकत, सलामती और खुदा तेरे नजदीकी का बाइस बन सके। खुदा तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों में जमा हैं, इन सब के लिए तेरी बरकत को, तेरी खुशी को, तेरे इत्मीनान को, तेरे जोर को, तेरे हाथ को मांगता हूँ। ये तेरे लोग तुझ में मामूर रहें, मसरूर रहें और शादमान रहें और सारा जलाल तुझे मिले। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू।